In class 7th. So today we are going to start with this comprehension part. Yesterday I gave you it as a homework and I told you to solve it, but nobody from the 7th class has sent me any of the answer sheets. I don't know whether you people are watching the videos or not, but I am sending each and everything to you very sincerely. I am doing my duty, bache. Now it is your duty to complete your work. So let's start. So you have to read this passage and you have to answer these questions. So complete the statements given below with the relevant information from the passage. So it is Gandhiji objected to concentration of wealth in the hands of few because he wanted to save time and labor. He wanted what he wanted? He wanted to save time and labor and not for the fraction of making but for all. वो चाहते थे कि जो टाइम है और लेबर है दोनों सेव हों और कुछ के लिए नहीं सबके लिए हो जो वेल्थ है. According to him, use of machinery was not to save labor but greed. क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली जो हम मशीनरी को कर रहे थे यूज़ कर रहे थे वो किस लिए था? नॉट टू सेव लेबर बट हमारी एक ग्रीड थी, हमारा लालच था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमाएं. बट उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारी जो लोग हैं वो बहुत अनएम्प्लॉयड हो रहे थे. मीन्स जो काम 10 लोग करते थे उसकी जगह एक मशीन आ गई तो जो 9 लोग हैं उनको जॉब छोड़नी पड़ती थी. तो ये हमारा लालच था क्योंकि यूज़ ऑफ मशीनरी हमारा लेबर सेव करने का ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा था. हम लोग उसमें ग्रीड ढूंढ रहे थे कि कम लोग लगेंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, कम पे देनी पड़ेगी, कम सैलरी देनी पड़ेगी. तो इसमें हमारा लालच था. It was a greed. Saving labor leads to that labor work under the attractive and ideal conditions. तो अगर हम लेबर को सेव करते हैं तो उससे क्या होगा? जो हमारी लेबर क्लास है बच्चे वो बहुत ही अच्छे से पूरे दिल से डेडिकेशन से काम करती और आइडियल कंडीशंस में करती. उसमें क्या होता? ऑनेस्ट ह्यूमैनिटेरियन हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए, ना कि ग्रीड. On the basis of your reading of the passage, answer the following questions. What was Gandhiji aiming at? So Gandhiji aimed at not at the eradication of machinery, but its limitation. Machines should be man's slave and not master. Clear? So all of you have to write here on as I have written. Gandhiji aimed not at eradication of machinery, but its a limitation. Machines should be man's slave and not his master. Second question, what should be the objective of the owner of the machine and how can this be achieved? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जो मशीनरी का ओनर है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव शुड बी सेविंग ऑफ लेबर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द ऑनेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड नॉट द ग्रीड. हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम किस तरह उनकी लेबर मीन्स उनकी हार्डवर्क को हम थोड़ा कम कर सकते हैं. हमें ये थोड़ा सा ऑनेस्टली ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये काम करना चाहिए, ना कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, वेस्टेड इंटरेस्ट को नहीं. हम अपने लालच को थोड़ा पीछे रखना चाहिए और मशीन्स यूज़ करनी चाहिए बट उससे क्या होना चाहिए? लोगों का भला हो, उनकी लेबर कम लगे. ये नहीं कि आप मशीन ले आए हैं तो आप ये नहीं कि आप 9 लोगों को अनएम्प्लॉय कर रहे हैं. उसमें आप पूरी ऑनेस्टी से ये काम करें और ये देखें कि उसमें सब कितने लोगों का ज़्यादा भला हो सकता है. ठीक है. सो राइट योर आंसर्स हियर ऑन दिस साइड. ऑन द बेसिस हो गया हमारा. थर्ड, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग. पैशन, ये 1 to लाइन 1 to 4 के बीच में मिलना था हमें. पैशन मीन्स क्रेज. A small portion means fraction. Force means बहुत सारे होते हैं ना, millions. Then next, not to agree.
objected. Total removal, eradication. Stop, cease. So find words from the passage whose opposites are dishonest and to place something. Dishonest का तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा honest, ये रहा honest humanitarian, and to place something means to replace. So with this we have completed this comprehension part. All of you need to practice this comprehension because in paper also I have seen only few children have written the exact answer. Otherwise आप लोगों ने पूरा या तो पूरा टेप दिया है उठा के कॉम्प्रीहेंशन से, और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर्स जो हैं वो उनके ठीक नहीं हैं अनसीन पैसेज में. मैक्सिमम मीन्स अगर 20 बच्चों में से देखा जाए तो सिर्फ 3-4 बच्चों के ही ठीक एकदम एग्जैक्ट आंसर्स है, बाकी उन्होंने तो बस ऐसे ही लिख दिया है. तो इसीलिए आप लोगों के नंबर भी फिर मैंने उतने ही दिए हैं उसकी आपके अकॉर्डिंगली जैसा आपने लिखा है. आप लोगों ने ना तो लेटर ढंग से लिखी है ना डायरी एंट्री, बहुत ही बेकार लिखी है आपने अम्यूज़मेंट पार्क वाली. आई थिंक दैट यू पीपल हैव नॉट वॉच्ड the video when I have when I made you write that amusement park diary on the amusement park, because only 2 or 3 students have written that diary and it was really a very good, but you people have, I don't know from where you have taken it out, and there is nothing about the rides in that. आप पार्क के बारे में लिख रहे हैं, मैं आपसे अम्यूज़मेंट पार्क का बोल रही हूँ एंड आप लोग सिंपल पार्क के बारे में लिख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं. तो इसीलिए आप लोगों के नंबर बहुत कटे हैं क्योंकि आप लोगों ने ठीक से लिखा ही नहीं. इसीलिए आपको बोल रही हूँ वॉच माय वीडियोस रेगुलरली. जो भी काम रह गया है कंप्लीट कर लो बच्चे. सिलेबस अभी लास्ट यूनिट रह गया है हमारा. बाय द एंड ऑफ दिसंबर आई वांट टू फिनिश द सिलेबस, सो कंप्लीट योर रिटन वर्क एज सून एज पॉसिबल. जैसे जैसे मैं आपको भेज रही हूँ अपना काम कंप्लीट करते रहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट लेसन. ओपन पेज नंबर 98. वर्सेटाइल वोकलिस्ट पंडित भीमसेन जोशी. हाँ जी, हैव यू हर्ड अबाउट हिम? आपने नाम सुना कभी इनका? भीमसेन जोशी. आपने ये देखा भी होगा इनको बहुत बार. ये बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं. ही इज़ अ वर्सेटाइल वोकलिस्ट. वर्सेटाइल होता है अ पर्सन हु कैन डू सो मैनी थिंग्स, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, उनको हम वर्सेटाइल बोलते हैं. वोकलिस्ट मीन्स सिंगर. पंडित भीमसेन जोशी. भीमसेन जोशी इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग सिंगर्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. ये हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत बड़े दिग्गज हैं. मोस्ट आउटस्टैंडिंग सिंगर्स हैं मीन्स मार्वलस, एक्सीलेंट, जिनका कोई भी पैरेलल नहीं हो. He is one of the most excellent singers of Hindustani classical music. He has held the stage as a versatile, innovative and accomplished vocalist. तो वो एक तरह से versatile मैंने आपको बताया है, जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जिनमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, उनको हम versatile बोलते हैं. And accomplished means highly skilled singer हैं. ये लाइन रिपीट हो गई दोबारा. ही इज़ वर्सेटाइल, इनोवेटिव एंड अकम्पलिश्ड वोकलिस्ट. ही इज़ अ प्योरिस्ट हु बिलीव्स इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ सिंगिंग. प्योरिस्ट मीन्स जिन्हें मालूम है, जो हर चीज़ की बारीकी का बहुत ध्यान रखते हैं, एग्जैक्टनेस, उसको हम प्योरिस्ट बोलते हैं. ही इज़ द प्योरिस्ट हु बिलीव्स इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ सिंगिंग. और वो ट्रेडिशनल, क्योंकि क्लासिकल सिंगर हैं तो इस चीज़ में हमें राग, सुर, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सो ही इज़ अ प्योरिस्ट मीन्स वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान देते हैं. हु बिलीव्स इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ सिंगिंग. और ये ट्रेडिशनल वे ऑफ सिंगिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. जैसे कि पुराने घरानों में गाया जाता था, घराने होते थे, सिंगिंग के और डांसिंग के अलग अलग घराने होते हैं.
तो उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये उसी एक घराने से बिलोंग करते हैं और उसी के तौर तरीक़ों को ये आगे फॉलो करते हैं। डिस्पाइट हिज मार्वलस एंड अनयूजुअल इम्प्रोवाइजेशन, वो एग्जैक्टनेस पे बहुत ध्यान देते थे अपने राग और सुर का। हु बिलीव्स इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ सिंगिंग डिस्पाइट हिज मार्वलस एंड अनयूजुअल इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन होता है जैसे कुछ नया क्रिएट करना, तो वो अपने घराने का ध्यान रखते हुए एग्जैक्टनेस पे बहुत ध्यान देते थे। बेशक उनकी बहुत ही वंडरफुल आवाज़ थी और वो कुछ नया करने की उसमें रहते थे अपनी गायकी से, मीन्स अपनी सिंगिंग से। ही वॉज वर्सेटाइल क्योंकि वो थोड़े से अनयूजुअल और क्रिएटिव माइंड के थे, बट फिर भी उन्होंने इस एग्जैक्टनेस को जाने नहीं दिया और वो गाने के वक्त उस एग्जैक्टनेस का बहुत ध्यान देते थे, जिसे हम राग बोलते हैं। और सुर मीन्स ट्यून आपकी कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का वो बहुत ध्यान रखते हैं। इट इज़ दिस क्रिएटिव टच दैट हैज़ मेड भीमसेन अ ग्रेट एंड यूनिक सिंगर। और यही क्रिएटिव टच है जो कि उनको इतना ग्रेट और यूनिक सिंगर उन्होंने बना दिया है, क्योंकि वो अपनी गायकी में कुछ अपनी भी क्रिएटिविटी डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सिंगिंग है उनकी वो और भी ज़्यादा वर्सेटाइल मीन्स यूनिक हो जाती है, थोड़ी हटके भी हो गई और आपके ट्रेडिशनल भी होगी, जैसे कि पुराने उनके गुरु गाते हैं और पुराने गुरु के साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा अपना टच भी डाल दिया, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ग्रेट सिंगर हैं। From the time that he was a child, Bhimsen loved music. और बचपन से ही ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। उनको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। भजन्स एंड अभंगाज संग बाय हिज मदर अपील टू हिम एनॉर्मसली। तो उनकी जो मदर थी वो बहुत अच्छे भजन गाती थी। भजन आप समझते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स भगवान के लिए जो हम गाते हैं। एंड अभंगा भी बच्चे एक पोइट्री होती है, फॉर्म ऑफ पोइट्री, डिवोशनल पोइट्री मीन्स ऐसी पोइट्री जो आप भगवान के लिए कविता बोलते हैं, उसको हम अभंग बोलते हैं। तो ये जो अभंगाज हैं ये स्पेशल हमारे हिंदू गॉड हैं विट्ठल, उनके लिए गाई जाती है। ये अभंगाज जो हैं हमारे हिंदू गॉड विट्ठल जी के लिए गाई जाती हैं। तो उनकी मदर गाती थी भजन भी और अभंग भी। अभंग मीन्स जो कभी भंग ना हो सके, एंडलेस, ठीक है ना। सो इट अपील टू हिम एनॉर्मसली मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनते थे जब उनकी मदर भजन और अभंग गाती थी। एनॉर्मसली मीन्स वो खो जाते थे उसमें, बहुत ज़्यादा उनको पसंद थी। सो वेन एवर आई लिसनड टू गुड म्यूज़िक आई वॉज ड्रॉन टू इट लाइक अ मैग्नेट। तो म्यूज़िक जो था उनके ब्लड में था, क्योंकि उनकी मदर भी गाती थी। तो इसलिए जब वो कोई अच्छा म्यूज़िक सुनते थे या कोई अच्छा गाने वाला सुनते थे तो वो मैग्नेट की तरह उस तरफ खिंच के चले जाते थे। जैसे मैग्नेट जो है लोहे की तरफ खिंचता है ना, ऐसे ही जो अच्छा गाना होता था या अच्छा म्यूज़िक जो होता था ये उनकी तरफ खिंच के चले जाते थे मैग्नेट की तरह। ही सेज मैनी टाइम्स आई फॉलोड अ भजन मंडली और अ बैंड पार्टी फॉर माइल्स। क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे मैग्नेट होता था ना, तो मैं वैसे ही खिंच जाता था अगर मुझे कोई अच्छा म्यूज़िक कहीं सुनने को मिल रहा है। तो वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है, मैनी टाइम्स ही हैज़ फॉलोड अ भजन मंडली। आपने सुना होगा मंदिरों में मंडलियाँ होती हैं जो भजन गाते हैं, ठीक है ना। और आपने वो देखे होंगे जैसे वो रात को क्या होते हैं, जगराते होते हैं ना, उसमें मंडली बुलाते हैं ना वो लोग। तो उसमें 5-6 लोगों की मंडली होती है, एक हारमोनियम बजाता है, एक ड्रम्स बजाता है और एक बैंड, वो पूरा इनका बैंड होता है और एक होता है सिंगर। उसमें मतलब सिंगर 2-3 होते हैं, बट वो
इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, तो उनको हम मंडली कहते हैं। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं किसी मंडली को फॉलो करता करता मीलों तक उनके पीछे पीछे चला जाता था, कई बार उनकी आवाज़ सुन के, उनका म्यूज़िक सुन के। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं मीलों उनके पीछे पीछे चला जाता था। तो मुझे अक्सर घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी दूर निकल जाता था उनके पीछे पीछे, तो मुझे वापस अपने पेरेंट्स तक लाने के लिए आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पुलिस। So I disappeared so frequently that my father had my name and address stitched on the back of my shirt. So he says कि मैं इतनी बार गायब हुआ हूँ, disappear means गायब हो जाना, और इतनी जल्दी जल्दी गायब हो जाता था, frequently means जो चीज़ बार बार हो रही है, कि मेरे फादर ने मेरा नेम और मेरा एड्रेस जो मैं शर्ट पहनता था उसकी बैक पे उन्होंने स्टिच करवा दिया था कि ये बच्चा तो बहुत गायब होता है, और अगर ये कहीं दूर निकल भी जाए तो पीछे एड्रेस होना चाहिए। इसकी शर्ट के पीछे उन्होंने स्टिच करवा दिया था उसका नेम और उसके घर का एड्रेस, कि जिसको भी ये मिले तो वो इसे हमारे अपने घर तक छोड़ जाए। तो इसलिए उसके फादर ने उसकी शर्ट के पीछे नेम एंड एड्रेस स्टिच करवा दिया था। आई होप यू आर एन्जॉइंग द स्टोरी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। So Bhimsen recalls that when he was 11 years old, he heard two brief recordings of उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो वो याद कर रहे हैं, रिकॉल मीन्स याद करना, दैट जब वो 11 ईयर्स के थे, सो ही हैज़ हर्ड टू ब्रीफ रिकॉर्डिंग्स। ब्रीफ मीन्स छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स। ब्रीफ होता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना छोटा, ऑफ उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो उन्होंने दो रिकॉर्डिंग सुनी थी अब्दुल करीम खान की, द प्राइम एक्सपोनेंट ऑफ किराना घराना, जो कि प्राइम एक्सपोनेंट थे, मीन्स मेन बड़े बहुत बड़े एग्जाम्पल थे वो किराना घराना के। उन्होंने उनकी दो ब्रीफ रिकॉर्डिंग सुनी थी। किसकी? उस्ताद अब्दुल करीम खान की। ही वॉज द प्राइम एक्सपोनेंट ऑफ किराना घराना एंड वॉज कम्प्लीटली कैप्टिवेटेड बाय दैम। तो उनकी गायकी सुन के वो बिल्कुल उनसे एन्चांटेड हो गए थे, मीन्स उनकी आवाज़ से बहुत फैसिनेट हो गए थे। इवन एट दैट एज आई हैड डिसाइडेड टू सिंग लाइक हिम, और मैंने उस एज में भी उनकी तरह गाने की काफ़ी कोशिश की। एंड द डिटर्मिनेशन स्टेड विद मी ऑल लॉन्ग। और उस वक्त उनकी जो गायकी थी वो मेरे पे इतना इफ़ेक्ट कर गई कि मैंने मन में डिटर्मिन कर लिया था कि मुझे इनकी तरह ही गाना है। मीन्स उनके मन में डिटर्मिनेशन रही और आज तक है। एंड दैट डिटर्मिनेशन स्टेड विद मी ऑल अलोंग दैट आई हैव टू सिंग लाइक उस्ताद अब्दुल करीम खान। भीमसेन वॉज ग्रूम्ड बाय सवाई गंधर्व। तो इनके कौन थे गुरु? सवाई गंधर्वा उनका नाम था। ग्रूम्ड बाय मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनको जिन्होंने शिक्षा दी, ठीक है। बाय सवाई गंधर्वा, द मोस्ट एमिनेंट डिसाइपल ऑफ उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो ये बहुत बड़े डिसाइपल थे। डिसाइपल मीन्स फॉलोवर थे उस्ताद अब्दुल करीम खान के। और ही वॉज भीमसेन वॉज ग्रूम्ड बाय सवाई गंधर्वा, जो कि उस्ताद अब्दुल करीम खान के बहुत अच्छे फॉलोवर थे। सो फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स आई स्टेड विद माई गुरु इन अ विलेज नियर करवार। और 5 साल तक ही स्टेड विद हिज गुरु। हु वॉज हिज गुरु? सवाई गंधर्वा। एंड हु वॉज सवाई गंधर्वा? ही वॉज द एमिनेंट डिसाइपल ऑफ उस्ताद अब्दुल करीम खान. So for 5 years he stayed with his guru in a village near Karwar. Classical music cannot be learnt as a sideline. So he understood कि अगर मुझे म्यूज़िक अच्छे से सीखना है तो ये मुझे इन एडिशन नहीं सीखना है, मुझे इसको पूरा अपना टाइम और डिवोशन, फुल डेडिकेशन के साथ सीखना पड़ेगा।
So that is why he stayed for 5 long years with his guru in his village. And where was his village? It was near Karwar. So my guru was a perfectionist. He is saying कि उनके जो गुरु थे वो परफेक्शनिस्ट थे, मीन्स उन्हें मालूम था कि कहीं से भी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, एग्जैक्टनेस का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. ही वॉज ऑल्सो प्योरिस्ट. Every phrase or nuance had to be perfected with single-minded devotion and dedication. Every phrase और nuance बच्चे डिफरेंस होता है एक मीनिंग और फीलिंग में, उसको हम कहते हैं सटल डिफरेंस इन मीनिंग और अ फीलिंग. तो जो ये बोलते थे ना मुखड़े, और जिसे हम कहते हैं टुकड़ा एंड ऑल दैट, नुएंस हैड टू बी परफेक्टेड, मीन्स उसको आपने बिल्कुल परफेक्शन से बोलना है, एंड विद सिंगल माइंडेड डिवोशन एंड डेडिकेशन, जिसमें आपकी पूरी डिवोशन और डेडिकेशन हो. इट वॉज रियाज जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस ऑल द वे. आई वॉज टॉट ओनली 3 रागाज ड्यूरिंग द 5 years ऑफ माई स्टे. तो वो 5 years तक अपने गुरु के साथ रहे, एंड यू कैन जस्ट इमेजिन इन 5 years ही वॉज टॉट ओनली 3 रागाज. उनको सिर्फ 3 राग सिखाए गए थे पूरे 5 साल में. नाउ यू कैन इमेजिन कि ये चीज़ें कितना टाइम लेती हैं, कितनी प्रैक्टिस आपको चाहिए, कितना रियाज चाहिए. यू नीड अ लॉट ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन टू लर्न समथिंग, टू बी अ परफेक्शनिस्ट. सो ही इन्फॉर्म्स all this about his education, that he has learnt this. He was groomed by Savai Gandharva, and he stayed with his guru in his village near Karwar. So Bhimsen has tried to blend the excellence of other schools with Kirana base. So as I have told you earlier कि उनमें एक अपनी, he was a versatile, he is a versatile singer, vocalist. तो उनमें एक अपनी क्रिएटिव और अनयूजुअल क्रिएटिविटी थी, जिससे वो अपने जो किराना घराना था उसमें वो उसको ब्लेंड कर देते थे, मिक्स कर देते थे, और जिससे वो एक नई चीज़ निकल के आती थी. सो ही ट्राइड टू ब्लेंड द एक्सीलेंस ऑफ अदर स्कूल्स. उन्होंने दूसरे स्कूल्स इन द सेंस जैसे आपका स्कूल है वो वाला नहीं, इनका सिंगिंग और डांसिंग के घराने होते हैं, उनके स्कूल होते हैं. तो इन्होंने, इनका जो घराना था वो किराना बेस का था, तो इन्होंने दूसरे स्कूल्स मीन्स दूसरे घरानों की जो ख़ास चीज़ें थी अपने किराने में मिक्स करके, ब्लेंड करके उसको और भी ज़्यादा अनयूजुअल और क्रिएटिव बनाने की कोशिश की है. एज अ रिज़ल्ट ही हैज़ मूव्ड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्कूल. तो जब आप अपना कुछ बीच में क्रिएट करते हैं, अनयूजुअल सा बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा ओरिजिनल से दूर हो जाते हैं. तो वैसे तो ही वॉज अ प्योरिस्ट, जो बिलीव करते थे कि ट्रेडिशनल वे में ही गाना चाहिए, बट उन्होंने थोड़ा सा अपना ओरिजिनलिटी भी उसमें डाली. इस वजह से वो अपने ओरिजिनल स्कूल से थोड़े से दूर हो गए थे. यट ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज प्योरिस्ट एज, बट फिर भी उन्होंने अपनी जो प्योरिस्ट एज मीन्स एग्जैक्टनेस नहीं छोड़ी. जो ट्रेडिशनल गाने की जो मेन चीज़ होती है वो उन्होंने नहीं छोड़ी. अ ट्रू आर्टिस्ट कैन क्रिएट इन्फिनिट वैरायटी विद अ लिमिटेड रेपर्टोयर. रेपर्टोयर होता है बच्चे वो सारी चीज़ें जो एक परफॉर्मर को पता है कि उसे ये आनी चाहिए. सॉन्ग्स हैं, पीसेस ऑफ म्यूज़िक हैं, इसको हम रेपर्टोयर कहते हैं. तो in spite of that he has added a bit of his own creativity in his traditional way of singing. He knew that a true artist can create infinite means endless, जो कभी ख़त्म नहीं होता, variety within a limited repertoire. मीन्स उन्हें मालूम है कि म्यूज़िक की क्या लिमिटेशंस हैं जो हमें कभी क्रॉस नहीं करनी, ठीक है ना. उसके बावजूद भी ही सेज दैट कि जो ट्रू आर्टिस्ट होता है वो अपनी क्रिएटिवनेस से ट्रेडिशनल वे ऑफ सिंगिंग में भी एक नॉवेल्टी ले आता है, मीन्स एक इनोवेशन ले आता है. तो वो उन्होंने करने की कोशिश की. किसने? मिस्टर भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी ने. द एक्नॉलेज्ड मास्टर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक
Bhimsen is one of the finest singers of bhajans. Acknowledged master of classical music. Acknowledge means किसी को आप जब किसी की इंटेलिजेंस या किसी की क्रिएटिविटी को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकग्नाइज जिसे हम कहते हैं. ही वॉज द एक्नॉलेज्ड मास्टर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक मीन्स उनको मानते थे लोग, एमिनेंट मास्टर हैं वो. एंड भीमसेन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ भजन्स, और वो बहुत ही बढ़िया भजन और अभंग गाते हैं. अभंग मैंने आपको अभी समझाया क्या होता है. अकॉर्डिंग टू हिम devotional music is a small variation of classical music. According to him means in his opinion, जो devotional music है, जो हमारे भजन हैं और जो हमारे अभंग हैं, अभंग means a devotional poetry that is sung in the praise of our Hindu god Vitthal. It's a small variation of classical music means ये classical music का ही एक part है. Most of the bhajans and abhangas are tuned एंड स्कोर्ड इन क्लासिकल रागास. ये जो हमारे सारे भजन और अभंग हैं ना, ये हमारे क्लासिकल राग से ही बने हुए हैं. ट्यून्ड, उन्हीं से ट्यून्ड हैं और उन्हीं से ही क्रिएट किए गए हैं. सो मोर ओवर दे गो डाउन वेरी वेल विद द मासेस मीन्स लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. मासेस मीन्स लोग, पब्लिक. भीमसेन वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1972. इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं. पद्मश्री इनको मिला 1972 में. देन पद्म भूषण इन 1985, पद्म विभूषण इन 1999. सो ही हैज़ गॉट 3 पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. सो आई कैन आस्क यू दिस एज अ one line answer. You should learn all this. He has sung at innumerable concerts all over the world. और उन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं बच्चे, जब हम पब्लिक के सामने लाइव परफॉर्मेंस देते हैं. म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स आपने टीवी में सुना होगा. जब लाइव कोई भी परफॉर्मर अपना परफॉर्मेंस देता है स्टेज पे, उसको हम कॉन्सर्ट कहते हैं. तो ही हैज़ संग एट इन्यूमरेबल मीन्स अनकाउंटेबल. बहुत सारे उन्होंने कॉन्सर्ट्स दिए ऑल ओवर द वर्ल्ड. एट 76 मीन्स नाउ ही इज़ इन हिज लेट 70s. देर इज़ नो वन टू मैच भीमसेन इन फेम एंड स्टार अपील. ही इज़ ऑफ 76 नाउ, बट स्टिल उनकी फेम मीन्स जितने वो फेमस हुए हैं या जितना उनको स्टार अपील मिली है, उतना आज भी कोई उनको मैच नहीं कर सकता. As a part of our country's celebrations of 50 years of independence, Bhimsen was asked to sing Vande Mataram in Central Hall of Parliament on the midnight of August 14, 1997. So when our country celebrated our 50 years of independence, that year he was asked to sing Vande Mataram in the Central Hall of Parliament on the midnight of August 14 in 1997. So he was very much honored, means he felt very much honored. He said that I am honored to be invited to perform. So you can just imagine from the invitation that how great singer he is. So with this we finish this lesson. I hope all of you have understood each and every line and word of this lesson. So tomorrow we'll continue with the question answer part and the vocabulary. So all of you complete your written work, send your notebooks in a PDF form as soon as possible. I am telling you for the last week, as we have completed unit number 4 and only few students had sent me the notebooks. But you complete your work and send it as soon, because we are going to complete the syllabus by the end of December, and I need and I want that you should all complete your work in time, so that I may check that all your work is up to date. So it is more than enough for today. So we will continue tomorrow in the next lecture. Have a good day.